चलो आपने एसिड्स की डेफिनेशन लिखनी है और इन ठीक है दोनों टाइप्स के बारे में लिखना है और ये टेबल लिखने हैं। ठीक है, ये सब उन लोगों के लिए मैंने रिपीट किया है जिन्होंने क्लास नहीं ली थी। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ पेज नंबर 80। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80। जो ओके, टेबल किसी क्वेश्चन के साथ लिखने हैं या वैसे ही लिखने हैं? नो नो, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला को याद करना है, देन आपने उसको जैसे एक इम्पोर्टेंट एसिड्स थे विच आर obtained फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, और जो अदर थे वो थे उनके मिनरल एसिड्स फॉर्मूला के साथ। ठीक है, ओके, right. यस। So all of you please open your books. Abdul Rahman, do you have your book? Abdul Rahman bete, do you have science book with you? No miss. Why? I have told, aap class hi nahi attend karte hain. I have told many times that books are available in your school now. You can go and collect it from there. अच्छा जी, अपनी बुक स्कूल से आप जाके ले लें। Everybody should know about it. अच्छा जी, right now we have just started our new chapter which is about acid, bases and salts, and it is also from the branch of chemistry. So we have discussed that what is the origin of acid, from which word it is derived, and how it is going to be reacted. So can you please tell me who is over here? Iman, Fatima, and that's it. Yes, Iman, tell me something about acid. Iman, where are you? Okay, the light I think has gone. Fine. अच्छा जी, तो बेटे मैंने आपको बताया था एसिड जो वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, लतीनी जबान का लफ्ज है जिसको हम एसिडस के नाम से उसको डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग है सॉर, खट्टा टेस्ट। ऑल ऑफ यू मस्ट नो अबाउट इट दैट इट इज एसिडिक, मींस लेमन, any vitamin C tablet, all these things contain little bit amounts of acids. So we are going to start now properties of acids, कि acids की properties क्या होती हैं. You can also open it on your book page number 80. So here are some tastes. सबसे पहले जब भी आपको कोई acid दिया जाता है, the first important thing that what is the taste? The taste is sour taste. खट्टा तुर्श जायका जो है, that is the identification of any acid. But last time I have told you सारे के सारे acids नहीं ऐसे होते जिन्हें आप taste कर सके. There are certain acids which are present in our eatable things, edible things में होते हैं. We are able to taste that, but हर एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो लाइक अगर आप देखें लेमन, यू कैन टेस्ट इट, ऑरेंजेस यू कैन टेस्ट इट, देन देयर कम्स विनेगर, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ विनेगर यू कैन टेस्ट इट. तो इस तरह की जो चीजें हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो उनका तो हम टेस्ट कर सकते हैं. लेट्स से मैं आपको HCl दूं और कहूं कि व्हाट इज द टेस्ट, तो यू आर अनएबल टू डू द टेस्ट. यू आर नॉट एवर ट्राई टू just taste it that how it tastes. Abdurrahman, your video is off. मुझे अब दोबारा ना कहना पड़े. So here is an activity. Fatima, Irfan, please start reading of this activity. Okay. Page number 80, activity number 6.1. It is the first activity of this unit. Read it. Okay. Properties of acids. Let us now study the properties which are common to all acids. All acids have a sour taste. Activity 6.1. Apparatus, material required. Test tube, water, dilute acetic acid. Procedure. Take a clean test tube half filled with water. Add a few drops of vinegar in it. Close the mouth of the test tube with your thumb and shake it well. Taste the wet thumb. How does it taste and why? All acids turn blue. Wait, Fatma, wait. Okay. In this activity they have said to you कि आपने क्या करना है. Dilute acetic acid जो होता है that is basically vinegar which is present in our home as well. हमारे घरों में जो vinegar present होता है which is used in Chinese food or in many other things as well for marination purposes. उसका जो formula है that is acetic acid, CH3COOH, right? तो मैंने आपको पहले ही बताया इसको हम टेस्ट कर सकते हैं.
आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू टेक अ लिटिल पोर्ट, लैब में करेंगे तो टेस्ट ट्यूब इज बेटर, उसको फिल कर लें वाटर से, एंड यू जस्ट नीड टू add some drops of vinegar, that is dilute acetic acid, and then you just shake it and just you have to taste it. So how does it taste and why? Ji Fatma, tell me the answer first. How It does, is sour. yeah, it is sour, and why? Because it has acetic acid in it, dilute Acid. acetic acid in it, that's why. Now अब second property है, all acids जो turn करते हैं blue litmus solution and methyl orange solution red. Litmus solution and methyl orange solution, these are the names of two indicators के indicate करते हैं हमारे पास जो solution दिया गया है उसको टेस्ट करने से पता लग जाता है either it is going to be a base or acid. तो जितने भी acids हैं वो turn हो जाते हैं blue litmus solution and methyl orange को red में convert कर देते हैं. रेड कलर का लिटमस एक लिटमस पेपर होता है छोटा सा, उसको जब whenever you are going to dip it in the acidic solution तो ये कलर चेंज कर लेता है, और जितना ज्यादा इंटेंस रेड होगा उतनी उसकी पीएच और इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी. सो दे हैव अ टेंडेंसी कि इनका जो ब्लू लिटमस है उसको सोल्यूशन को दे टर्न टुवर्ड्स रेड सोल्यूशन, राइट. सो इसी से रिगार्डिंग हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसको रीड करें फातिमा. All acids turn blue litmus solution and methyl orange solution red. Activity 6.2. Apparatus material required. Test tubes 3. Dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. Blue litmus, methyl orange, phenolphthalein. फिनोफ्थलीन, क्या बोलेंगे हम इसे? Phthalein. नहीं नहीं, Phenolphthalein. फिनो नहीं, एल साइलेंट होगा. फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन क्या बोलेंगे? Phenolphthalein. नो, फिनो Procedure. नहीं, रॉन्ग बोल रही हो फातिमा. फिनोफ्थलीन. हु इज स्पीकिंग? Okay, phenolphthalein. अब्दुल रहमान, बंद करें अपना माइक. What are you saying? First switch on your camera, then say anything. बीच में आप लोग बोलने लग पड़ते हैं. आवाज नहीं आ रही तो you can read it by yourself. Yes. हाँ जी, yes फातिमा, what is the word? Phenolphthalein. Yeah, it's phenolphthalein. L is silent. Phenolphthalein is also an indicator. Methyl orange and phenolphthalein are indicators जो कि बता देते हैं कि कलर चेंज हो गया है, रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं. So here we go. जी पढ़ें procedure. Procedure. Take a little dilute HCl or H2SO4 solution in 3 separate test tubes. Label them as 1, 2 and 3. Add 2 or 3 drops of blue litmus, methyl orange and phenolphthalein in the test tubes 1, 2 and 3 separately. What changes in the color of the solution do you observe? Right. So इस हमने एक्टिविटी में ये किया कि we have taken 3 different acids, HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, and हम साथ में हमने क्या किया है जनाब, इन जो इनके सॉल्यूशंस हैं इनको डाइल्यूट करके 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिए हैं, एंड देन वी हैव लेबल्ड देम एज 1, 2 and 3, and then we have added some drops of blue litmus, methyl orange and phenolphthalein in the test tube 1, 2 and 3 respectively. ठीक है. फिर उसके बाद हमने इसका चेंज ऑब्जर्व किया. ऑब्वियसली जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे ना ड्रॉप्स, तो वो अपनी कलरेशन को चेंज कर लेंगे, जो कि इंडिकेट करेगा कि इसमें एसिड्स प्रेजेंट है, लाइक HCl प्रेजेंट है, H2SO4 प्रेजेंट है. और तीसरी वाली ट्यूब इन्होंने स्किप की हुई है, दे डिडंट राइट डाउन कि उसमें क्या डाला, उसमें आप कोई सा भी और एसिड ऐड कर लें, HNO3. तो जब आप उसमें इंडिकेटर ऐड करोगे तो दे विल गिव यू अ क्लियर इंडिकेशन, जिसको आप अपनी आईज के साथ देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हुआ है, एंड यू कैन इजीली डिटरमिन कि जी इसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. नाउ देयर इज एक्टिविटी नंबर 6.3 which is we need apparatus, test tubes, vinegar, litmus solution and sodium hydroxide solution. It is a base. Sodium NaOH is hydroxide. The formula of sodium hydroxide is NaOH solution. What we have to do, we need to take 2 centimeter cube of vinegar. 2 centimeter cube होता है 2 ml. 2 ml of vinegar in a test tube, and we are going to add 2 drops of, ये जो indicators है ना जितने भी, इनको हम drop by drop add करते हैं. It's not like that कि हमने एकदम ही उठा के ढेर सारा डाल देना. No, we just add drop by drop, like 2 drops of blue litmus solution to it and observe the change if there is any.
ऑब्वियसली जब हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन डालना है तो इसमें एसिड प्रेजेंट है तो ये अपना कलर चेंज करेगा और रेड की तरफ चला जाएगा. Then add carefully sodium hydroxide solution and observe the changes taking place in the solution. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है जिसमें OH नेगेटिव आयंस हैं. एसिड सारे हैं उनमें H प्लस आयंस होते हैं. तो जब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू चेंज द कलर. तो ये ब्लू साइड पे चला जाएगा और शो करेगा कि ये अब एसिड नहीं रहा. इट इज गोइंग टू चेंज टुवर्ड्स बेस. ठीक है. सो बेसिकली हाँ अल्कली बन जाएगा. बिकॉज हमने जितने भी रिएक्शंस करने हैं इस बेसिकली 3 एक्टिविटीज में आपको यही बताया गया है कि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इंडिकेटर्स तो उनका इफेक्ट क्या आता है उसके ऊपर. ठीक है. पहले वाला का टेस्ट था, अब वो सेकंड वाले में इंडिकेटर था. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 81. सो ओवर हेयर यू कैन सी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको किया जा रहा है अब कंसीडर, जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर corrosive liquids, they burn skin and destroy fabrics and animal tissues. कि ये जो हैं ये corrosive नेचर के होते हैं और ये स्किन को बर्न कर देते हैं और एनिमल्स को भी और डिस्ट्रॉय कर देते हैं हर तरह की चीज को भी. सो आप इजीली देख सकते हो कि अगर एसिड कोई खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर गिर जाए तो वो क्या कितनी ज्यादा इफेक्ट करता है चीज को. सेम केस एनिमल्स के साथ भी है. कपड़ों पे हमारे गिर जाए सुराख हो जाते हैं, उसमें फट जाते हैं. अब्दुल रहमान बिहेव योरसेल्फ. ये फजूल किस्म की लाइनें लगाना ना बंद कर दो. अच्छा जी. तो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स. एक्वस सॉल्यूशन मींस वो सॉल्यूशन जो हम वाटर में बना रहे हैं, द सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप इन वाटर. सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब पानी का सॉल्यूशन बना लेते हैं एसिड में तो वो बहुत अच्छी सी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, पास होने देते हैं. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ electricity. Now if I give you the example of UPS batteries, तो उसमें जो आप देखें बैटरी में एसिड ऐड होता है, उस एसिड में पानी भी ऐड होता है. तो उनके अंदर जब आप उनको टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो वो उनके अंदर से ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं. सो वी कैन से दैट aqueous solutions of acids are very good conductors of electricity. ठीक है. Now fifth one, acids react with reactive metals. आगे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, जितनी भी मेटल्स हैं एसिड्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड व्हाट दे इवॉल्व ऑक्सीजन गैस. नाउ हियर इज टू इक्वेशंस फॉर दैट. दो मेटल्स हैं हमारे पास मैग्नीशियम एंड वी आर एडिंग 2 molecules of HCl which is giving us magnesium chloride plus hydrogen gas. Then same is the case with zinc. When it is going to react with H2SO4 which is sulfuric acid, it is going to produce zinc sulfate along with liberation of hydrogen gas. अब आप देखें इसके नीचे जो apparatus आपको सारा नजर आ रहा है, ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म किया जाता है कि जब जिंक का रिएक्शन वो डाइल्यूट एसिड यानी H2SO4 के साथ करते हैं. Now in the diagram all of you can see एक स्टैंड पड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड और उसके साथ हमने टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है. अब आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन है वो हमने डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का. ठीक है. और साथ में हमने जिंक की मेटल छोटे छोटे पीसीज आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे होंगे, दैट आर जिंक ग्रेन्यूल्स, जो कि हमने उसमें एड अप कर दिए हैं. ठीक है. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं ये हमने इसमें एड अप कर दिए हैं. सो जब इनका रिएक्शन, इसको हमने स्टॉपर्ड कॉर्क, ऊपर आप देख सकते हो कॉर्क लगा हुआ है जो कि बंद है ताकि जो हाइड्रोजन गैस है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें, वो उड़ ना जाए. तो इसके लिए हमने उसको स्टॉप किया हुआ है. वी हैव गुड स्टॉपर्ड, वी हैव प्रॉपर्ली इसको हमने स्टॉप किया हुआ है. ठीक है. देन आप देख सकते हो इसके साथ एक लंबी सी ट्यूब आ रही है जिसको हमने नीचे एक और सोल्यूशन में रखा हुआ है, सोप सोल्यूशन में. और उधर आप देखें उधर बबल्स छोटे छोटे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. अगर हम स्टॉपर्ड ऊपर कॉर्क ना लगाएं तो वो हाइड्रोजन गैस सीधी उड़ जाए. बट हमने चूंकि चेक करना है, जस्ट ये एक्सपेरिमेंट ही इसलिए कंडक्ट हो रहा है कि हम चेक करना चाह रहे हैं आइदर. अब्दुल रहमान माइक ऑफ करें बेटे, मैं खुद कर देती हूँ.
अच्छा जी, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट वी कैन चेक हाइड्रोजन गैस इज आइदर गोइंग टू प्रोड्यूस और नॉट। आप देखें सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन में आप देखें उसके बबल्स बन रहे हैं, और अब हमें हाइड्रोजन का टेस्ट करना है, तो जब भी हम उसके पास कैंडल या कोई भी लाइट फ्लेम ऑन करते हैं तो इट गिव्स अ साउंड ऑफ पोप, burning of hydrogen with pop sound. This is the test for hydrogen identification कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। So this one is the just diagrammatically आपको represent करके बताया हुआ है to get familiar कि किस तरह से लैब में reactions होते हैं और उनको चेक किया जाता है, ठीक है। Then there is 6th number property that acid have the tendency that they react with metal carbonates. Metal carbonates मतलब zinc carbonate, magnesium carbonate, sodium carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे जो हैं ये मेटल्स के साथ जो कार्बोनेट CO3 लग जाता है तो वो बन जाते हैं कार्बोनेट्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, राइट। सो हियर इज द इक्वेशन दैट कैल्शियम कार्बोनेट is going to be reacted with 2 moles of HCl, तो एक कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। जी जी, हु इज स्पीकिंग अगेन एंड अगेन बेटे? और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो करेंगे प्रोड्यूस। इधर सॉल्ट कौन प्रोड्यूस करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ठीक है। सो दिस वाज इन दिस पेज। अगले पेज को डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल आस्क इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। This is the next page, page number 82. You can also open it on your books, which is sodium hydrogen carbonate, Na8CO3 को जब हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो बन जाता है सोडियम एसीटेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये इक्वेशंस आपको तब तक नहीं याद होंगी जब तक आप इसको बार बार नहीं लिखेंगे। सो प्लीज ट्राई टू मेक इट श्योर यू डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास कि इसका हम टेस्ट किस तरीके से शो कर सकते हैं कि जिस तरह हमने हाइड्रोजन गैस को चेक किया, नाउ देयर इज अ डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल, दैट हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द practical. So carbon dioxide produced in this reaction turns lime water milky. Lime water जो होता है हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही वाटर होता है, बनाया जाता है, जो कि कलरलेस होता है। जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो इट टर्न्स टुवर्ड्स मिल्की। दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये देखें इधर भी ऑपरेटर्स है, इस स्टैंड को बोलते हैं हम ट्राइपोड स्टैंड। उसके अंदर एक कनेक्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब को एक आप कह सकते हो नोजल लगी होती है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, उस पेज को खोलकर। तो टेस्ट ट्यूब हमने लगाई हुई है एंड देन वी हैव एडेड स्टॉप कॉकर, उस कॉल उसके ऊपर भी 2 सुराख होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक जो है आप देखें उसके ऊपर फनल लगाई हुई है और एक जो दूसरा है उसके अंदर से हमने दूसरी ग्लास ट्यूब पास की हुई है और उसको बीकर में रखा हुआ है ताकि हमें पता लग सके कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट हो रही है या नहीं। अब जो ऊपर हमने फनल लगाई हुई है, फनल मैं इसको कह रही हूँ, लेट मी हाईलाइट फॉर यू, आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, दिस इज द फनल जिसको मैंने सर्कल किया, ठीक है। इस फनल के अंदर के थ्रू हमने ऐड करने हैं इसमें अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें प्रोटोकॉल चाहिए, जो प्रोसीजर के लिए चीजें चाहिए। एसिटिक एसिड हम इसमें ऐड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जो बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो रिएक्शन फौरन से स्टार्ट हो जाएगा और साथ में आप देख सकते हो कि ये जो लगी हुई है, ये सारे की सारी ये जो बारीक सी आपको लिड नजर आ रही है, ये इसलिए कि पता लगे कि गैस जो है वो इसमें से पास आउट हो रही है। और हमने पहले ही क्या है कि रिएक्शन क्या आइडेंटिफिकेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, कि हमारे पास जो लाइम वाटर है, ये बीकर के अंदर लाइम वाटर है, इसको मिल्की कर देगी। ऑब्वियसली जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो वो फौरन से लाइम वाटर में जाएगी एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड फाइनली उसको क्या करेगी, चेंज कर देगी उसका कलर, दैट इज मिल्की। द लास्ट इज एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस मींस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है
along with water. तो उस प्रोसेस को, उस चीज को हम बोलते हैं कि ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना दिया है, साथ में वाटर बन गया है, हमारे पास कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही। सो बहुत फेमस एग्जांपल है H2SO4 when it is going to react with sodium hydroxide it is going to produce sodium sulfate along with water. जब तक आप इन इक्वेशंस को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, you don't get command on that. Then we have some uses. इन uses को हम बाद में करेंगे। पहले अगर यहाँ तक किसी का कोई question है, they can ask me, raise your hands if you have any question. हाँ जी, any question ईमान? फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा बेटे एनी हाँ बोले फातिमा, शाबाश। टीचर ये हमने कॉपी पे लिखनी है इक्वेशंस? हाँ इक्वेशंस मैं भी आपको होमवर्क एंड पे बताती हूँ क्या। ओके ओके। सैयदा फातिमा बेटे, इज इट क्लियर टू यू? यस मिस। बेटे आप क्लास के बीच में से गायब हो जाती हो, कहाँ जाते हो? मिस वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। आप मिस अमारा की बेटी हैं? जी मिस। है तो फिर क्लासेस क्यों नहीं ले रही? मुझे ये बताओ ना, वो भाई भी नहीं ले रहा क्लासेस 9th क्लास में, व्हाई इज इट सो? कहते चुप। अच्छा जी, वी हैव ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपकी लास्ट क्लास भी नहीं हुई थी। सो हियर आर सम यूजेस सेट्स। अच्छा होमवर्क मैं आपको लाजमी बताऊंगी, सो क्लास से जाइएगा मत। सो यूजेस ऑफ एसिड्स, पहले HCl के एसिड्स हैं, फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस नाइट्रिक एसिड एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। जितनी भी मेटल्स हैं, जो भी जब उनको जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है उनकी, तो जब भी उनको एसिड से वॉश किया जाता है तो ये उसमें बड़ा हेल्प आउट करती है। मीन्स यू आर मेकिंग सम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग लाइक HCl और आप उसको साफ कर रहे हो, जहाँ पे जंग लग गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई है, तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगी और वो उस रस्टिंग की लेयर को ब्रेक डाउन कर देगी। सो इट इज अ वेरी मेजर यूज एंड देन वो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन। यस बेटा। यस फातिमा। कोक भी फिर एसिड है? व्हाट? टीचर कोक भी फिर एसिड है क्योंकि उससे वो रस्टिंग मिट जाती है ना टीचर? Have you done the experiment really in your real life? टीचर क्या मैंने आपने काफी बताया लोगों उससे से कोक से? सुना और देखा हुआ है। You have seen in 5-minute craft video? Yes, one time there and teacher मैंने काफी लोगों से But सुना भी है। do it by yourself. Some people Okay. say that if you put the coke in commode, it is going to be clean, just like you have put some Harpic and toilet cleaner. But it doesn't work. But basically, coke is a chemical. It is very dangerous even for our bones, for our teeth, each and everything. We have done an experiment when we was in our metric. हाँ बता रही हूँ आपको. So what did we do? We not in metric, when we was in bachelor's. Honors की बात बता रही हूँ आपको. We just take the teeth of goat, बकरे के दांत लिए थे हमने, and we just dissolved it in the coke. Can you believe वो दांत पूरी तरह से dissolve हो गए थे coke? How harmful it is. और जब हम इसको पीते हैं तो आपको पता ही है कि बोन्स के साथ हमारे क्या करती है. बोन्स क्रैक हो जाती हैं, दांतों का बुरा हाल हो जाता है, कैविटीज बन जाती हैं. But still we drink it, that we will, how we are going to digest our burger if we don't take coke along with it. ऐसे ही है ना? टीचर मैंने 5 मिनट्स क्राफ्ट में देखा था, उन्होंने अपने सारे टूल्स ना कोक के अंदर डाल दिए थे और वो बहुत ज्यादा पुराने से थे और उनके ऊपर रस्ट लगा हुआ था, लेकिन वो फिर सारे साफ हो गए, उन्होंने बना रखा था। बेटे मैंने भी 5 मिनट्स क्राफ्ट बहुत सारा देखा, बट इट्स नॉट एक्चुअल. ऐसा होता है पर उतने बिलीव मी इतना ज्यादा नहीं होता जितना ये दिखा देते हैं. It contains chemical. It has the ability to de-stain
some things, but no वैसा बिल्कुल नहीं होता जिस तरह से वीडियोस में हमें दिख रहा होता है, ठीक है? Yes. Then for purification of common salt which is table salt, then to make aqua regia. Aqua regia जो है ये एक बहुत कॉमन चीज है केमिस्ट्री में, जिसमें हमारे पास 3 जो पोर्शंस होते हैं वो HCl के होते हैं और एक पोर्शन एसिड का होता है। तो ये जो होता है कि हम नोबल गैसेस या नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उसको भी डिसॉल्व कर देता है। लाइक अगर हम ये सोल्यूशन बनाएं जिसमें 3 ml मैं HCl ले रही हूँ और 1 ml HNO3 ले रही हूँ और उसमें मैं कुछ भी गोल्ड का ड्रॉप कर देती हूँ, गोल्ड आपको मिलेगा नहीं। इट हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट इट, ठीक है? और इस सोल्यूशन को जो 3 HCl के हैं मॉलिक्यूल्स और 1 HNO3 का, इसको बोलते हैं एक्वा रिजिया, ठीक है? देन फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में भी सम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उनमें HCl होता है कि ये हमारा जो प्रॉपर डाइजेशन है उसको हेल्प आउट करता है, ठीक है? देन देयर आर सम यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, जहां तक हम आज करेंगे। दिस इज नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। दिस इज वेरी डेंजरस एसिड। सारे ही एसिड ये वाले डेंजरस हैं, बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस। नाइट्रिक एसिड इज बेसिकली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो किसान फार्मर्स हैं यूज करते हैं अपनी सॉइल में टू मेक इट फर्टाइल। अमोनियम नाइट्रेट में यूज होता है। देन इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। अगर इसकी अमाउंट जरा सी ज्यादा कर दी जाए तो बिलीव यू मी जो ट्राई नाइट्रोटोलिन जिसको हम बोलते हैं TNT के नाम से, ये बहुत ज्यादा लेवल पे तबाही का सबब बनता है। इट कैन डू लॉट ऑफ एक्सप्लोड्स एवरीवेयर। आपके जहन में होगा ये बैरूत पे जो सारा अभी हुआ है हमला वगैरह, जो भी जिसको न्यूक्लियर वॉर से मिलाया जा रहा है, उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट थी बहुत ज्यादा, और आप देखें कि उसका क्या हाल हुआ है, ठीक है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क्स में ये नहीं कि बहुत भर भर के इसकी अमाउंट यूज की जाती है। इट्स जस्ट लाइक आप देखें सॉल्ट अगर आप खाने में एक हद से ज्यादा कर दें तो बिल्कुल जहर बन जाता है। मतलब मैं आपको कहूँ, आपने थोड़ा सा खाना पकाना, उसमें 3 चम्मच आप नमक डाल दो, हाउ इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट। लेकिन यही सॉल्ट अगर आप लाइक यू आर गोइंग टू बेक अ केक, तो जस्ट यू ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सेम सॉल्ट, तो वो टेस्ट दे देता है। तो किसी भी चीज की एक्सेस बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है। सो नाइट्रिक एसिड एंड इवन ऑल एसिड्स आर अमंग दोस कैटेगरीज जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है? अब आपका बेटे होमवर्क ये है कि आपने जनाब ये जो पेज नंबर हमारा है 81, इसमें हमने जो आप यूं कर लो, यू जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हमने स्टडी की है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नंबर 1 एक्टिविटीज नहीं लिखनी इसमें, नंबर 2, नंबर 3 इक्वेशन आ जाएगी उसमें, नंबर 4 और ये साथ में आपने डायग्रामेटिकली हर चीज बनानी है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? अगर Just अब का तक कोई answer क्या क्वेश्चन लिखना आपका है बेटे, यू आर सपोज टू राइट डाउन फ्रॉम पेज नंबर 80 to 82। पेज नंबर 80 पे आप देखें है ऑल एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट, नंबर 1। नंबर 2 उसकी हो जाएगी ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल और इन सॉल्यूशन रेड, नंबर 2 हो गया। देन मूव ऑन पेज नंबर 81, वहां पे नंबर 3 पॉइंट है, फिर 4 है, 5 है, 5 की डायग्राम आप बनाएंगे। देन देयर इज नंबर 6 एंड मूव ऑन पेज नंबर 82, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट है वो, और नंबर 7 की इक्वेशन तक। दिस इज योर होमवर्क एंड यू आर सपोज टू लर्न इट। प्लीज जस्ट हैव अ लुक, इसके ऊपर एक नजर जरूर मार लेना, कल मैं आप लोगों से फिर पहले पूछूंगी, ठीक है? यहाँ तक अगर किसी को कोई इश्यू है जल्दी जल्दी मुझे बताएं। टीचर, यानी दोनों डायग्राम्स बनाने हैं? बिल्कुल, तो लड़कियों को तो मजा Okay. आता है यार डायग्राम बनाने का, इशू कोई भी नहीं होना चाहिए। यस टीचर, मैंने सारे बनाए हैं और कलर भी किए थे। हाँ मैंने पहले ही बताया, बच्चियों को माशाल्लाह कोई काम ही नहीं है, हमारी पेपर में भी फारिग हो जाए तो टीचर हम कलर कर लें। टीचर, मुझे वैसे कलरिंग पसंद नहीं है, लेकिन वो अच्छी करने के लिए मुझे हाँ ड्राइंग नहीं, बनाना नो भी डाउट, अच्छा नो लगता है। डाउट, नो डाउट, आप अपना पेपर जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर पे उतना ही अच्छा वो होता है। I personally Yes. don't like drawing and stuff like that. I just hate it. That's why I didn't go for bio. Oh, So Fatma, you are back from Islamabad? yes. Islamabad and Murray. Oh, how was the weather over there? टीचर, इस्लामाबाद में मरी से ज्यादा ठंड थी। Hmm. Yes. But what about the COVID-19? फिर भी सहन कर रहे हो आप लोग?
टीचर जब हम मरी गए ना वहाँ इतना ज्यादा रश था लेकिन किसी ने मास्क भी नहीं पहना था। वही मैं बता रही हूँ, आई हैव सीन सम पिक्चर्स ऑफ माल रोड वेयर देयर इज इवन नो पैसेज टू मूव ऑन, लेकिन लोग फिर भी गए हुए यस हैं। टीचर और आपको बहुत पता लंबी है ब्लॉकेज कि थी। हाँ जी, और वहां पर लोगों की उन्होंने सैम्पलिंग की है एंड सो मेनी केसेस ऑफ कोविड आर ओवर देयर, यू नो दैट। यस बट टीचर लेकिन लेकिन ये हमने है कि स्टे नहीं किया था। हाँ, मैं यही कह रही हूँ बस, बट अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर जा रहे हैं देन इट इज ओके, दैट्स गुड। एनवायरनमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, डू पीपल एंजॉय विद योर फैमिली, दैट्स गुड। हम फजर के बाद निकल गए थे, मैं और मेरी फैमिली, और फिर हम शाम को वापस आए थे। ऑन द सेम डे यू कम बैक? यस टीचर स्टे नहीं किया था दैट्स गुड। क्योंकि फिर नहीं ऐसे भी नेक्स्ट ठीक डे है। मंडे को हमने उधर भी आना, संडे को हम निकल गए थे लाहौर के लिए ना, इसलिए। सही, गुड गुड गुड, चले अच्छी बात है। क्लास इज गोइंग टू बी ओवर